Assalamualaikum. I'm Nurulan, course in charge of secondary pharmacology. The topic of discussion is laxative and purgative drugs. What is laxatives? Laxative provide elimination of soft semi-solid stools. Laxative provide elimination of soft semi-solid stool, whereas purgative provide more water evacuation. आपके पास जो laxative है उसका इफेक्ट जो है वो माइल्ड होता है, जबकि purgative का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है. एलिमिनेशन और स्टूल की जो है वो वाटरी फॉर्म में होती है. Normal bowel function is disturbed. Water and electrolyte loss होता है. Increase aldosterone production होती है, इसकी वजह से पोटेशियम लॉस होता है. Laxative are milder. आपके पास वही डेफिनेशन हम उसको फर्दर एक्सप्लेन कि laxatives are milder in action and deal with evacuation of rectum. With use of laxative, there is elimination of formed stool, whereas cathartics are severe in action and deal with evacuation of colon. Indication of laxative and purgative drugs are constipation, before surgery, endoscopic intervention, abdominal X-ray examination, there is uroscopy, etc. Elderly, debilitated patient with chest or abdominal surgery, fresh infarction, there is cerebral hemorrhages. Prevention of constipation, high fiber diet, adequate fluid intake, and regular exercise. Now, objectives of the topic. You must know define laxative, purgative, cathartic, classify laxative, describe the clinical benefits of the use of laxative, describe the mechanism of action of bulk laxative, enlist adverse effect of bulk laxative, describe the mechanism of action of osmotic laxative, enlist adverse effect of osmotic laxative, describe the mechanism of action of fecal softeners, describe the mechanism of action of stimulant purgatives, enlist adverse effect of stool softeners and stimulant purgatives. These are the learning objectives. अच्छा जी. Now, causes of constipation. What are the causes of constipation? Metabolic and endocrine disorders. Metabolic and endocrine disorders include diabetes, hypothyroidism, and pregnancy. डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी, इन आपके पास मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं. इसमें आपके पास हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रही है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायबिटीज आ गया. हाइपोथायराइडिज्म में क्योंकि थायराइड आपके पास थायराइड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है. और प्रेगनेंसी में भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन के मल्टीपल इश्यूज आते हैं, उनमें से एक मेन इश्यू है कॉन्स्टिपेशन के. न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स आपके पास क्या? ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड लेशन, पार्किंसन डिजीज. व्हाट इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी? Autonomic neuropathy is a group of conditions caused by damage of nerves. It can lead to many different symptoms like dizziness, night sweats, and constipation. These nerves are the part of autonomic nervous system. Basically, आपके पास जो है न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर में जो आपके पास ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, बेसिकली इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है वो नर्व्स का डैमेज हो जाता है, और वो नर्व जो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स को रिलेट कर रही होती हैं उनमें आपका डैमेज कॉज होता है, जिसमें आपके पास जो है वो डिजीनेस, लाइक नाइट स्वेट्स और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रॉब्लम आती हैं. ये आपके पास जो है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अंदर प्रॉब्लम कॉज होती हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस? Multiple sclerosis is a potentially disabling disease of the brain and spinal cord. In multiple sclerosis, the immune system attacks the protective sheet, that is myelin, that covers the nerve fiber and causes communication problem between your brain and the rest of your body. Basically, आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो मायलिन शीट होती है नर्व फाइबर्स के ऊपर, वो प्रोटेक्टिव शीट जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है.
जिस डैमेज की वजह से क्या होता है कि प्रॉपरली नर्व इम्पल्स जो है वो आपके पास जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाते, आपकी ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो है नर्व इम्पल्स प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाते। पार्किंसोनिज्म, व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? नेक्स्ट आपके पास क्या है? पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इसमें आपके पास जो है हैंड की इनिशियल जो है वो ट्रिमर कॉज होते हैं, हैंड्स के अंदर हैंड की मूवमेंट में ट्रिमर कॉज होते हैं। ट्रिमर्स आर कॉमन बट द डिसऑर्डर आल्सो कॉमनली कॉज स्टिफनेस और स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स इसमें क्या आते हैं? एनाल्जेसिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, आयरन सप्लीमेंट्स, आपके पास ओपिएट्स, एल्युमिनियम एंटासिड और कैल्शियम एंटासिड रिलेटेड। एनाल्जेसिक्स के आपके पास जो है कुछ एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग से कुछ एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। आयरन सप्लीमेंट से कुछ एडवर्स इफेक्ट आपके जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। ओपीएट्स, एल्युमिनियम एंटासिड, आयरन, कैल्शियम एंटासिड के एडवर्स इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन के कॉज की वजह बनते हैं। कंटिन्यू है कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपके पास क्या है लाइफस्टाइल में? क्या आपके पास अगर डाइट में पुअर फूड इनटेक है और लो रेजिड्यू आपके पास है डाइट का, लो फाइबर रेजिड्यू ले रहे हैं और आपके पास एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी या साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज कॉन्स्टिपेशन एज वेल। Classification of laxatives. Bulk forming laxatives, stool surfactant agents, osmotic laxatives and stimulant purgatives. Basically in general आपके पास laxatives का क्या effects है? Osmotic laxative increase fluid content of the stool, increases fluid content of the stool. Stimulant laxative increases peristalsis. Fecal softener causes softening or lubricates the stool. Fiber आपके पास जो है bulk laxative cause fiber increases or bulk of the stool. Basically by adding the fiber in the stool, it increases the bulk of the stool. Bulk forming laxative. Now the next आपके पास है bulk forming laxative. Bulk forming laxatives are indigestible hydrophilic colloids that absorb water, forming a bulky emollient gel that distends the colon and promote peristalsis. Basically bulk forming laxative आपके पास indigestible hydrophilic colloids हैं जो कि क्या करते हैं that water को absorb कर लेते हैं और bulky emollient gel बना देते हैं जो आपके पास colon को distend करती है, peristalsis को promote करती है, जिसकी वजह से defecation cause होती है। Common preparation include natural plant products, physalia, cellulose, and synthetic fiber like polycarbophyll. Bacterial indigestion of plant fiber within the colon may lead to increased bloating and flatus. Bloating and flatus का मेन इश्यू इसमें आता है क्योंकि आपके पास जो बैक्टीरिया है आपके कोलॉन में वो डाइजेस्ट कर लेते हैं प्लांट फाइबर को कोलॉन के अंदर, जिसकी वजह से वो ब्लॉटिंग और फ्लैटस प्रोड्यूस करते हैं। आपके जो ब्लॉटिंग क्या है? गैसेस एक्यूमुलेशन और इंजेक्शन ऑफ एयर फ्रॉम द माउथ, आपके पास जो है वो गैसेस एक्यूमुलेशन इन स्टमक, एंड फ्लैटस क्या है? रिमूवल ऑफ गैसेस थ्रू रेक्टम। Stool surfactant agent. These agents soften stool material, permitting water and lipids to penetrate. They may be administered orally or rectally. आपके पास orally or rectally administer कर सकते हैं इन्हें। हम बेसिकली आपके पास soften करते हैं स्टूल को, permeate करते हैं वाटर और लिपिड्स को penetrate हो जाए। Common agent include Docosade, oral और enema भी दिया जा सकता है, glycerin suppository एक ही फॉर्म में भी दिया जा सकता है। In hospitalized patient, Docosade is commonly prescribed to prevent constipation and minimize straining. Straining जो आपके इंटेस्टाइन जो पड़ी है उस स्ट्रेनिंग को ओवरकम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए नॉर्मली स्टूल सर्फेक्टेंट एजेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। Mineral oil is a clear viscous oil that lubricates fecal material, retarding water absorption from the stool. बेसिकली आपके पास क्या है? मिनरल ऑयल क्या है? क्लियर विस्कस ऑयल है जो कि लुब्रिकेट करता है फीकल मटेरियल को, वाटर एब्जॉर्प्शन को
आपके पास स्टूल में नहीं होने देता, इसकी वजह से प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है फीकल इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड debilitated adults. It is not palatable but may be mixed with juices. बेसिकली अगर palatable नहीं लेकिन कुछ juices का मिक्स है तो expression can result in severe lipid pneumonitis. आपके पास जो है लिपिड न्यूमोनाइटिस, बेसिकली आपके पास क्या होता है, लिपिड pneumonia is a specific form of lung infection, lung inflammation that develops when lipid enter the bronchial tree. बेसिकली आपके पास जो है लिपिड न्यूमोनिया क्या है कि बेसिकली एस्पायरेशन की वजह से मीन्स ड्यूरिंग ईटिंग जो है आपकी सांस की नाली में जो है वो कुछ इसका पार्ट जो है वो चला जाए, इसकी वजह से लिपिड न्यूमोनिया आता है, यानी कि आपके पास लंग इन्फ्लेमेशन कॉज होती है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ लिपिड. लॉन्ग टर्म यूज कैन इम्पेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के. फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा आपके पास, ए डी ई के, इनकी जो है वो यानी कि एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती. ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स. The colon can neither concentrate nor dilute fecal fluid. Fecal water is isotonic throughout the colon. बेसिकली आपके पास colon की एबिलिटी नहीं जो ना वो concentrate करता है ना dilute करता है, fecal fluid को concentrate और dilute नहीं करता. Fecal water का isotonic होता है throughout the colon. Osmotic laxatives are soluble but non-absorbable compounds. आपके soluble तो होते हैं लेकिन ये आपके पास absorb नहीं होते. That result in increased stool liquidity due to an obligate increase in fecal fluid. Fecal fluid को क्योंकि ये absorb नहीं होते इसलिए fecal fluid का आपके पास जो है वो मटेरियल absorb कर लेता है, fecal absorb कर लेता है उसको, क्योंकि ये बॉडी में absorb नहीं होते. इसमें आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर्स एंड सॉल्ट. These agents may be used for the treatment of acute constipation or the prevention of chronic constipation. Acute constipation या आपके पास chronic constipation को prevent करने के लिए यूज की जाते हैं. Magnesium hydroxide, that is milk of magnesia, is a commonly used osmotic laxative. It should not be used for prolonged period in patients with renal insufficiency due to the risk of hypomagnesemia. Hypomagnesemia की रिस्क की वजह से हम जो है तो आपके पास जो है वो पेशेंट जो कि रीनल कॉम्प्रोमाइज है, रीनल इनसफिशिएंसी बेसिकली के साथ रन करें तो उन पेशेंट्स के अंदर हम मिल्क मैग्नीशियम एडमिनिस्टर नहीं करते. Sorbitol and lactulose are non-absorbable sugars that can be used to prevent or treat chronic constipation. बेसिकली sorbitol और lactulose जो है प्रिवेंट करते हैं chronic constipation को. These sugar are metabolized by colonic bacteria producing severe flatus and cramps. क्योंकि ये आपके पास colonic bacteria से जो मेटाबोलाइज कर लेते हैं, that is the flatus and cramps जो है वो प्रोड्यूस होते हैं साइड इफेक्ट. High doses of osmotically active agent produce prompt bowel evacuation, purgation within 1 to 3 hours. High doses अगर osmotic आपके पास जो है laxative की दे दी जाए तो आपके पास जो है वो विद इन 1 to 3 आवर्स जो है पर्गेशन विद इंक्रीज वाटर कंटेंट के साथ जो है तो आपके पास जो है वो कॉज होती है. द रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द डिस्टिल्ड स्मॉल बाउल एंड कोलोन लीड टू अ हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टूल फॉलोड बाय रैपिड रिलीव ऑफ कॉन्स्टिपेशन. बेसिकली आपके पास में क्या होता है, वाटर की रैपिड मूवमेंट होती है डिस्टिल्ड स्मॉल बाउल से कोलोन, आपके पास बेसिकली जो है लिक्विड स्टूल जो है वो रैपिड रिलीफ देता है कॉन्स्टिपेशन से. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पर्गेटिव्स आर मैग्नीशियम सिट्रेट एंड सोडियम फॉस्फेट. अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है बैलेंस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. Lavish solution containing polyethylene glycol are used for complete colonic cleansing before gastrointestinal endoscopic procedure. बेसिकली आपके पास ये सोल्यूशन जो है बिफोर gastrointestinal endoscopic procedure के से पहले दिया जाता है ताकि प्रॉपर क्लींजिंग हो सके इंटेस्टिनल gastrointestinal tract. These balanced isotonic solution contain an inert non-absorbable osmotically active sugars with sodium sulfate, sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride. The solution is designed so that no significant intravascular fluid or electrolytes shift occur. Basically आपको इस तरह से ये आयंस को कंटेन करता है कि इनकी वजह से कोई इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की जो है वो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट
शिफ्ट नहीं होती क्योंकि ये प्रॉपरली आइसोटोनिकली जो है प्रिपेयर किया जाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। Therefore, they are safe for all patients के लिए सेफ है। The solution should be ingested rapidly. Solution को जो rapidly ingest किया जाता है 2 to 4 लीटर over 2 to 4 hours के अंदर इसे ingest किया जाता है। To promote bowel cleansing, ताकि proper bowel cleansing हो सके। For treatment or prevention of chronic constipation, small doses of PEG powder may be आपके पास proper treatment और prevention के लिए chronic constipation को prevent करने के लिए basically हम PEG powder जो है mix करके water और juices आपके पास 17 ग्राम पर 8 ounce iron also daily ingest किया जाता है। In contrast to sorbitol or lactulose, PEG does not produce significant cramps or flatus. Basically आपके पास जो है PEG जो है वो cramps or flatus नहीं produce करता like sorbitol or lactulose. Stimulant laxative. That is cathartic. These are the cathartic. Main mechanism is not clear, but there are the number of options. देखिए आपके इसमें जो है इनका mechanism proper clear नहीं है, लेकिन हम इनको different options के through इनका mechanism को describe करते हैं. These include direct stimulation of indirect nervous system and chronic electrolytes and fluid secretion. डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं इंटरनल नर्वस सिस्टम को या क्रोनिक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और या फिर आपके पास फ्लूइड की सिक्रीशन को। ग्लाइसिन suppositories are also used in this category. Anthraquinone derivatives. Aloe, cinnamon, cascara occur naturally in plants. These laxatives are poorly absorbed and after hydrolysis in the colon produce a bowel movement in 6 to 12 hours when given orally and within 2 hours when given rectally. 6 to 12 hours के अंदर जो है वो मूवमेंट के बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पोरली एब्जॉर्ब होते हैं और कोलॉन के अंदर हाइड्रोलिसिस के बाद विद इन 6 to 12 आवर बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपके पास जो है बेसिकली जो है वो ओरली दें तो विद इन 2 आवर्स जो है वो बेसिकली विद इन 2 आवर्स रेक्टली जो है वो बाउल मूवमेंट कॉज करते हैं। ओरली 6 to 12 आवर एंड रेक्टली विद इन 2 आवर्स। Chronic use lead to characteristic brown pigmentation of the colon known as melanosis coli. Basically आपके पास brown pigmentation of colon cause होती है जिसे हम कहते हैं melanosis coli. Chronic use किया जाए, ज्यादा use किया जाए, long period के लिए अगर इसे use किया जाए। Diphenyl methane derivatives. Bisacodyl is available in tablet and suppository formulation for the treatment of acute and chronic constipation. डाइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव में आपके पास बिसाकोडाइल है जो कि टैबलेट और सपोजिटरी दोनों की फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है और एक्यूट एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन कंजक्शन विद पीईजी। आपके जो हमने अभी पढ़े पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन फॉर क्रोनिक क्लींजिंग प्रायर टू क्रोनोस्कोपी। अगर क्रोनिक क्लींजिंग के लिए पीजी के साथ हम इनको यूज कर बिसाकोडाइल प्लस पीजी को हम यूज करते हैं ताकि क्रोनिक आप जो है वो क्लींजिंग हो सके कोलोनोस्कोपी से पहले। It induces a bowel movement within 6 to 10 hours and 6 to 10 hours जब ओरली दिया जाए and 30 to 60 minutes रेक्टली अगर देंगे इसे सपोजिटरी की फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे 30 to 60 मिनट्स के अंदर ये बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। It has minimal systemic absorption. Systemic absorption से कम हो जाती है and appear to be safe for acute and long-term use. Phenolphthalein another agent है इस कैटेगरी के अंदर डाइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स का another agent है phenolphthalein, but because it produces the characteristic that is why it is withdrawal from the market. Chloride channel activators. Lubiprostone is a prostanoic acid derivative labeled for the use in basically some chronic constipation that is associated with the irritable bowel syndrome. आपके पास जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड होती है उनमें हम लुबिप्रोस्टोन को यूज करते हैं जो कि आपके पास प्रोस्टेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द टाइप 2 क्लोराइड चैनल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Opioid receptor antagonist. Two selective antagonists of the mu-opioid receptors are commercially available. That is methyl naltrexone bromide and elvimepan.
बिकॉज दीज एजेंट डू नॉट रियली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। आपके पास क्या है, इनको हमने बेसिकली इनको जो है वो लैक्सेटिव यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली ये आपके इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को ये जो मेटाबोलाइट्स हैं क्रॉस नहीं करते। दैट इज व्हाई दीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी एनाल्जेसिक इफेक्ट। दे इनहिबिट पेरिफेरल म्यू ओपियोइड रिसेप्टर जो आपके पेरिफेरी में मौजूद है, सेंट्रली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, पेरिफेरल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पेरिफेरी में म्यू ओपियोइड रिसेप्टर मौजूद है, उनके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट इम्पैक्ट एनी एनाल्जेसिक इफेक्ट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Methylnedrozone is approved for the treatment of opioid-induced constipation. Albumin is approved for short-term use to shorten the period of post-operative ileus in hospitalized patient. Basically आपके पास post-operative ileus की condition में जो है वो hospitalized patient में दिया जाता है। Post-operative ileus basically refers to obstipation and intolerance of oral intake due to factors that disrupt the normal coordinated propulsive motor activity of the gastrointestinal tract. Basically हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन या इंटॉलरेंस ओरल इनटेक की वजह से जो है ये ऑब्स्टिपेशन या इंटॉलरेंस कॉज हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें आपके पास प्रोपल्सिव मोटर एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुकी होती है बेसिकली। तो दैट इज एल्यूमिनोपेन जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो यूज की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं। Serotonin 5-HT4 receptor agonist. Serotonin 5-HT4 receptor agonist. These enteric neurons stimulate proximal bowel contraction by acetylcholine and substance P. Basically acetylcholine और substance P के थ्रू जो है वो enteric neuron को आपके पास बेसिकली स्टिमुलेट करती है proximal bowel contraction को। enteric neuron के आपके पास जो है enteric neuron को बेसिकली स्टिमुलेट करती है जिसमें आपके पास एसिटाइलकोलिन के थ्रू और सब्सटेंस पी के थ्रू बेसिकली जो है प्रॉक्सिमल बाउल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है एंड डिस्टल बाउल रिलैक्सेशन कॉज करती है बाय आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स के थ्रू। प्रोगेस्टेरॉन was approved for the treatment of patients with chronic constipation and IBS with probedominant। जो आपके पास IBS की पेशेंट एंड बेसिकली आपके पास क्या है IBS की पेशेंट, आपके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट जो है जिनके साथ आपके पास मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की है उनमें हम डेगास्ट्रोल देते हैं। इसको हमने जो है फिर फर्दर डिस्कस इन डिटेल दिस कैटेगरी डिस्कस इन डिटेल इन आईबीएस। नाउ यहाँ पे नॉर्मल फिलिंग में डेफिकेशन रिफ्लेक्स में हमारे पास क्या है, आफ्टर नॉर्मल इवैक्यूएशन ऑफ द कोलन हाफ आपके पास ये वो रिलीव हो गया यानी कि इवैक्यूएट हो गया। इंटरवल आपके पास बेसिकली नीडेड होगा जो कि आपके पास जब तक फुल कोलन यानी कम इंटरवल नीडेड है, जबकि आपके पास लैक्सेटिव में जो है देखिए इंटरवल शॉर्ट है, यहाँ पे इंटरवल जो है वो लॉन्गर होता जा रहा है। लैक्सेटिव आपके पास क्या करता है, फुल इवैक्यूएशन कॉज करा देता है जिसके से लॉन्ग इंटरवल होता है, लॉन्ग इंटरवल नीडेड है, रीफिल रखता है, बेसिकली लॉन्ग इंटरवल नीडेड है। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन के बाद हम कॉन्स्टिपेशन में हमने लैक्सेटिव दिया तो बेसिकली क्या होता है आपके पास जो है लैक्सेटिव क्या करता है कि पोटेशियम के रिलीज करवा देता है। अब बेसिकली पोटेशियम का रिलीज कराता है जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास में रिटेंशन सोडियम वाटर आपके पास रिटेंशन कॉज होती है बिकॉज पोटेशियम का रिलीज हो रहा है तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। अल्डोस्टेरॉन जो है वो रिटेंशन ऑफ वाटर करवाता है, इसकी वजह से आपके पास जो है वो सोडियम और वाटर को सेव कर लेता है। तो जो है हाइपोकैलेमिया और बाउल ये जो हाइपोकैलेमिया जो आपके पास बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है रीनल लॉस की वजह से पोटेशियम की, तो वो आपके पास नहीं प्रोड्यूस होगा।